Hello students, I am Kumar going to discuss lecture 2 of the chapter Vector and Relativity of class BSc part 1 physics, in which I am going to discuss gradient, divergence and curl of a vector quantity. First of all, gradient of a scalar quantity. ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन का, जबकि डाइवर्जेंस एंड कर्ल किसी वेक्टर फंक्शन का होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, gradient of a scalar function phi. First of all, we have to discuss gradient. Gradient of a scalar function, and gradient of a scalar function is a vector. If we operate del operator on a scalar function, suppose phi, we obtain a vector which is called gradient of a scalar. So gradient of a scalar is a vector which can be represented as, if write down, if we operate del operator, ये del operator है जो कि एक वेक्टर है, वेक्टर ऑपरेटर है, डेल के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डेल ऑपरेटर है. डेल ऑपरेटर is operated with a vector, with a scalar. Suppose that a scalar function is differentiable function, that a scalar function is phi, then we obtain a vector and that is called gradient, grad phi. We obtain a vector. So gradient of a scalar is a vector. We obtain a vector which is called grad phi. Gradient of a scalar is a vector. We obtain a vector grad phi. It is read as grad phi. It is a vector, but phi is a scalar function, differentiable scalar function. It is a scalar, but when del operator is applied on a scalar, we get a vector which is called grad phi, which is called gradient, grad phi. It is read as grad phi. तो ग्रेडियंट कैसे ऑब्टेन होगा, ये हुआ, और इसे हम ग्रेड फाई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ग्रेड फाई इक्वल्स टू, डेल ऑपरेटर को हम इसे लिखा जा सकता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इसे ऑपरेट कर देना है फाई पर, इसे फाई पर ऑपरेट कर देना है. तो ये फाई ईच ऑपरेटर के साथ आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डेल अपॉन डेल एक्स एलोंग एक्स एक्सिस, डेल अपॉन डेल वाई, वाई के अलोंग, डेल अपॉन डेल जेड के जेड के अलोंग. आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस respectively. So now we can write a vector grad of phi is a vector now, which is, because it has magnitude and as well as direction. Magnitude is del phi upon del x. Rate of change of a scalar function, that is rate of change of a scalar function phi with respect to distance. और यहीं से ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होगा, फिजिकल मीनिंग भी होगा इसी एक्सप्रेशन से, या इसका डिफिनीशन होगा. वी कैन डिफाइन ग्रेडियंट phi as a vector which has
maximum value of rate of change of function phi along the normal direction to a point where point of a level surface where a scalar function phi, where the value of a scalar function is phi. The maximum rate of increase of a scalar function phi along the normal direction to the point where a scalar function is phi on a level surface. तो ये फिजिकल मीनिंग होगा ग्रेडियंट का, जो इसी एक्सप्रेशन से इसका मीनिंग भी, चूँकि डेल फाई बाई डेल एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्स along x axis. So and now I cap is the unit vector along x axis, so it is a vector. I del phi by del x is a vector plus j cap del phi upon del y, that is rate of change of a scalar function phi along y coordinate axis, plus it is also a vector, plus k cap is the unit vector along z axis del phi upon del z. This is equation 1. तो ये del phi by del z क्या है? ये rate of change of a scalar function phi at any point of a scalar field at a level surface along z axis, and k cap is the unit vector along z axis. So gradient of a scalar is represented as del operator phi, which is a vector I cap in Cartesian coordinate. It expressed as grad phi is equal to I del phi by del x plus j del phi upon del y plus k cap del phi by del z. तो ये मैथमेटिकल इसका मीनिंग हुआ, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ ग्रेडियंट का. अब फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट जो कि इस एक्सप्रेशन से भी यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है कि ग्रेडियंट जो होगा स्केलर फील्ड के किसी पॉइंट पर, यहाँ लेवल सरफेस के किसी पॉइंट पर कोई अगर स्केलर फंक्शन है सपोज किया गया है, तो उस स्केलर फंक्शन का उस लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर, दैट इज लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दैट स्केलर फंक्शन एट दैट पॉइंट in a scalar field is the gradient at that point. So grad phi can be represented as del phi upon del n into n cap. So now physical meaning of gradient. Physical meaning of gradient. Gradient of a scalar function. Gradient of a scalar function. Say that a scalar function is phi at a point, at any point, at a point in the scalar field, in the scalar field is defined as the maximum increase of, defined as the maximum increase of the scalar function phi, maximum increase of the scalar function phi along perpendicular, along normal direction to the level surface, along normal direction to the point, that point, along that is normal to the level surface, along the normal direction or perpendicular direction, normal direction to that point, along the unit normal vector n cap, जो कि उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा, के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप होगा, उसी डायरेक्शन में ग्रेड फाई हो, ग्रेड फाइव का वही डायरेक्शन होगा, जिसके अलॉन्ग स्केलर फंक्शन स्केलर फील्ड के किसी पॉइंट पर या कहें लेवल सरफेस के किसी पॉइंट पर, स्केलर फील्ड में ही लेवल सरफेस होता है,
तो स्केलर फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर कोई स्केलर फंक्शन फाई है तो उसका उस स्केलर फंक्शन का उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा इंक्रीज का, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ किसका मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज होगा, उस स्केलर फंक्शन का होगा। यहाँ हमने सपोज किया है स्केलर फंक्शन फाई। तो अगर स्केलर फंक्शन फाई है और मान लिया कि लेवल सरफेस पर किसी स्केलर फंक्शन फाई है, देखें यहाँ पर ये लेवल सरफेस है, यहाँ इस लेवल सरफेस पर कोई पॉइंट अगर सपोज किया जाता है कि ए पॉइंट है और यहाँ पर कोई स्केलर फंक्शन फाई है, तो फाई का जो इंक्रीज का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखें हम ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वह एन कैप है। तो इसमें जो इंक्रीज होगा फाई में जो इंक्रीज होगा तो डेल फाई अपॉन इसके लॉन्ग जो इंक्रीज होगा फाई में स्केलर फंक्शन, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एन इस नॉर्मल डायरेक्शन के लॉन्ग। क्योंकि एक दूसरा भी लेवल स्पेस थी लेवल सरफेस इसके ऊपर ए के ऊपर सपोज किया जा सकता है, और अगर ए पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट किसी ऑरिजिन के एस्पेक्ट में, अगर बाहर कोई इनिशियल ऑरिजिन है उसके एस्पेक्ट में इनिशियल पॉइंट है उसके एस्पेक्ट में आर है, और दूसरा अगर लेवल सरफेस इसके ऊपर लेते हैं ए से लेवल सरफेस फाई के लेवल सरफेस फाई के जस्ट ऊपर, अगर वह लेवल सरफेस पर स्केलर फंक्शन का वैल्यू अगर फाई प्लस डी फाई है, चूँकि हम जानते हैं कि लेवल सरफेस दो लेवल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह हमेशा कांस्टेंट होता है, स्केलर फील्ड में हमने स्टडी किया था, हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये फाई अगर इसके ऊपर एक दूसरा इसके लेवल सरफेस लिया जाता है जहाँ पर कोई पॉइंट बी हो सकता है, तो उस ए बी के लॉन्ग उस पॉइंट ए बी के लॉन्ग या कोई पॉइंट सी सपोज करते हैं बी मान लिया कि दूसरा लेवल सरफेस है, कोई पॉइंट यहाँ पर बी लेते हैं, तो ए बी के लॉन्ग अगर ए से बी के लॉन्ग उसका पोजीशन वेक्टर ए से बी के लॉन्ग उसका जो ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा वो डेल्टा आर होगा। तो ए से अगर बी पॉइंट यहाँ पर लिया जाता है तो ए से बी पॉइंट के लॉन्ग अगर पोजीशन वेक्टर में चेंज डेल्टा आर है तो ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पोजीशन में चेंज होगा वह होगा डेल फाई बाई डेल एन नॉर्मल डायरेक्शन में। तो यही डेल फाई बाई डेल एन क्या है, मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट एनी पॉइंट ए ऑफ द लेवल सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन इज पॉइंट फंक्शन इज फाई। तो इट इज डेल फाई बाई डेल एन इज द, ये डायरेक्शन हो गया इधर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ए पॉइंट के परपेंडिकुलर लेवल सरफेस के ए पॉइंट पर जहाँ स्केलर फंक्शन का वैल्यू फाई है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई का रेट ऑफ इंक्रीज है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज है, और उसको रिप्रेजेंट करने वाला एन कैप है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला ए के नॉर्मल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप है, एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, उसी के लॉन्ग ग्रेड फाई का डायरेक्शन होगा। क्योंकि ग्रेड फाई तो वेक्टर हो जाएगा, फाई स्केलर फंक्शन है, लेकिन डेल ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमने देखा आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, और ये मैग्नीट्यूड ही है डेल फाई बाई डेल एक्स, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, rate of increase of scalar function phi with respect to distance along x-axis. Del phi by del is the y is the rate of change of a scalar function, rate of increase of a scalar function phi along y direction. Del phi by del z is the rate of change of a scalar function phi along z direction. ये के कैप इज यूनिट वेक्टर, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो निश्चित रूप से निसंदेह ग्रेड फाई इज ए, देयर इज नो डाउट ग्रेड फाई इज ए वेक्टर। Although phi is a scalar function, but when del operator is del operator is applied, operator we can, if we operate del operator on phi, we get certainly a vector, and that vector is grad phi, which is very clear from these components and these vectors I cap del phi by del x, j cap del phi by del x. These are vectors because they have magnitude del phi by del x and direction I cap along x axis. j कैप along y एक्सिस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डेल फाई बाई डेल आई वाई, और k कैप डेल फाई बाई डेल जेड। तो इसी एक्सप्रेशन से ये जो ग्रेड फाई का जो थी है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, इसके हेल्प से हम डिफाइन कर पा रहे हैं ग्रेड फाई को, जो कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई along the normal direction to a point where a scalar function, the value of a scalar function is phi, and direction of that maximum increase of
a scalar function phi in perpendicular direction to that point is n cap, along the direction of n cap. So gradient of a scalar function phi at a point in the scalar field is defined as the maximum increase of phi, a scalar function phi, along the normal direction to that point. That is, say this point is a, this point, say it is a, this point is a, along, और किस डायरेक्शन में होगा? along the unit normal vector n cap, along the unit normal vector n cap, unit normal vector n cap. Therefore, we have grad phi, definition of grad phi, physical meaning of, this is the physical meaning of gradient. So grad phi can be expressed as, grad phi, we can express grad phi as del phi upon del n, that is maximum increase of a scalar function phi along normal direction or along the perpendicular direction of a vector, along, और किस डायरेक्शन में होगा? along the unit, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, ए पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को जिसके अलॉन्ग स्केलर फंक्शन फाई में मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन है? एन कैप है. एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर along perpendicular direction to point A of the scalar field, यूनिट नॉर्मल वेक्टर. तो इस प्रकार हमने फिजिकली भी फिजिकल मीनिंग ऑब्टेन किया ग्रेडियंट का उसको, और ग्रेड फाई इजकल टू, जिसे हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेड फाई इजकल टू डेल फाई बाई डेल एन इंटू एन कैप. एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर along the perpendicular direction to point A of the scalar field, of the level surface. This is the physical meaning of grad phi, and also it represents the definition of grad phi. Now, divergence of a vector. If we operate del operator, that is del vector, on a vector, suppose that vector is capital A vector, by a scalar product, then divergence A vector can be expressed as the scalar product of del vector and A vector, and can be written as, now write down, अगर हम किसी वेक्टर, सपोज किया जाता है वह वेक्टर ए, कैपिटल ए वेक्टर है, उस पर डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट के साथ अप्लाई करेंगे तो हमें एक स्केलर ऑब्टेन होगा जो डाइवर्जेंस ए वेक्टर होगा. सो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर वी ऑब्टेन इज ए स्केलर. That is divergence a वेक्टर, और हमें करना होगा डेल ऑपरेटर को अप्लाई करना होगा किसी वेक्टर पर. तो सपोज किया जाता है कि वह वेक्टर ए वेक्टर है, डेल ऑपरेटर को अप्लाई किया ए वेक्टर पर, तो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज डाइवर्जेंस ए वेक्टर. वी ऑब्टेन डाइवर्जेंस ए वेक्टर. नाउ इन Cartesian coordinate, del vector can be written as I cap del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z dot a vector. A vector can be written as, in terms of component, a vector can be written as x I cap plus a y j cap plus az k cap. Now we can write it as I dot I is equal to 1, j dot j is equal to 1, k dot k is equal to 1. तो केवल ये आउट ऑफ 9 टर्म्स केवल 3 टर्म्स सर्वाइव करेगा. बाकी I डॉट j is equal to 0, j डॉट k is equal to 0, k डॉट I is equal to 0.
तो दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स या दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है, तो केवल सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ही सर्वाइव करेगा, वन होगा, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू वन. देयरफॉर वी कैन राइट इट एज डेल एक्स अपॉन डेल्टा एक्स आई डॉट आई विच इज इक्वल टू वन. डेल ए वाई, अब डेल आई जे कैप डेल अपॉन डेल वाई को स्केलर प्रोडक्ट किया जाएगा ए वाई जे के कैप के साथ, तो डेल ए वाई अपॉन डेल वाई जे डॉट जे इक्वल टू वन होगा. और फिर डेल अपॉन डेल जेड को के कैप डेल अपॉन डेल जेड को का स्केलर प्रोडक्ट होगा ए जेड के कैप के साथ, तो डेल ए जेड अपॉन डेल्टा जेड अपॉन मल्टीप्लाइड बाई के डॉट के, तो के डॉट के इक्वल टू वन. देयरफॉर वी विल लेफ्ट विथ डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, एंड सर्टेनली इट इज अ स्केलर. इसमें कोई भी वेक्टर नहीं है, कोई भी ना यूनिट वेक्टर है, तो ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर रिटन हेयर वी ऑब्टेन हेयर इज सर्टेनली ए स्केलर. ये निश्चित रूप से स्केलर है, इसमें कोई वेक्टर का कहीं केवल मैग्नीट्यूड ही है. डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, तीनों टर्म डाइवर्जेंस ए का. तो ये डाइवर्जेंस से हो गया, दैट इज डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर, और डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर, while in the earlier case gradient of a scalar was a vector. This is equation number 2 here. So divergence is equal to del ax upon del x plus del a upon del y plus del az upon del z, and it is a scalar. It is a scalar. So divergence of a vector is a scalar. A scalar. डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर. और हमने यूज किया प्रॉपर्टी का आई डॉट आई जे डॉट जे, वी हैव यूज्ड इन आई डॉट आई कैप प्लस इक्वल टू जे डॉट जे कैप इक्वल्स टू के डॉट के कैप इक्वल टू वन, एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई इक्वल्स टू के डॉट के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जीरो. इसका हमने यूज किया, तो हमने डाइवर्जेंस ए का रिजल्ट ऑब्टेन किया, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल ए जेड अपॉन डेल जेड विच इज ए स्केलर. सो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर. नाउ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट बिकॉज डाइवर्जेंस मीन्स फ्लो. डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है फ्लो. देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट flows through any surface area or any area element, suppose it is ds, per unit volume, and it can be expressed as divergence amount of flux, that is डाइवर्जेंस ए को हम डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली. ये इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, और ये डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर. अगर किसी वेक्टर फील्ड के किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस को डिफाइन करना है, तो उस वेक्टर फील्ड के उस पॉइंट के सराउंडिंग जो एलिमेंट होगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट, उस पर, तो उससे जो फ्लक्स डाइवर्ज करेगा वह हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एंड इंटीग्रल ओवर सरफेस अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आप सपोज करते हैं डेल वॉल्यूम एलिमेंट सपोज किया जाता है डी टॉ, दिस इज द एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट, एंड दिस इज द डिफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस से.
integral over closed surface, integral over the entire surface a vector dot ds vector upon d tau. d tau is the वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है. अब इसमें हम लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. तो इसके लिए डेल्टा टॉ इसको यूज कर सकते हैं डी टॉ के जगह, या डी टॉ भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. इक्वल्स टू वी कैन अप्लाई इट ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन डी टॉ. यहाँ लिमिट डी टॉ टेंस टू जीरो या डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट मतलब जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसको इनफाइनाइटली स्मॉल लिया जा सकता है. लिमिट डेल्टा टी डी टॉ टेंस टू जीरो, दैट इज कंडीशन अप्लाई किया जा सकता है. इसमें लिमिटिंग वैल्यू लिया जा सकता है इस अमाउंट ऑफ फ्लक्स का, अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट डाइवर्जेज थ्रू ए पॉइंट through a small area element ds which around a point A in the vector field. So d tau tends to 0. Now we can divide d tau. So this is the definition of equation number 3. This is the definition of divergence A. This is the definition of divergence A. That is amount of flux, divergence of a vector field, divergence of a vector in a vector field at a point is the amount of flux diverging through the area enclosing the area, a small area enclosing that point where a vector is situated in the vector field per unit volume. तो यहाँ पर डी टॉ इज द वॉल्यूम एलिमेंट, यहाँ डी भी लिखा जा सकता है, डी टॉ इज द वॉल्यूम एलिमेंट. और यहाँ कंडीशन भी लगा दिया डी टॉ टेंस टू जीरो. अगर वॉल्यूम एलिमेंट काफ़ी स्मॉल है तो डी टॉ टेंस टू जीरो. सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस ये है अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट डाइवर्जेज थ्रू द एरिया, स्मॉल एरिया टू द सरफेस एरिया एस involving so many small areas such as ds1, ds2, ds3. तो यहाँ पर ए वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का. तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ए. नाउ फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ए. Now after defining the divergence of a vector, that is divergence a vector at a point in the vector field in the integral form, that is amount of flux diverging per unit volume through an elemental area, a small area, that delta s, and which was given by डाइवर्जेंस ए जो हमने डिफाइन किया, इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. और अगर स्मॉल एरिया डी एस है, डी एस इज द एलिमेंटल एरिया, तो इस पर लिमिट ये डेल्टा है, माने एक छोटा सा एरिया है एलिमेंटल एरिया एस वेक्टर, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टॉ, डेल्टा टी या डी टॉ. लिमिट यहाँ कंडीशन अप्लाई कर देंगे, डेल्टा टॉ टेंस टू जीरो, और ये था डेल्टा टॉ या डी टी भी लिखा जा सकता है, डी टॉ. तो ये डाइवर्जेंस ए का डिफिनीशन था जो अभी हमने ऑब्टेन किया. सरफेस को एक एलिमेंटल एरिया सरफेस एरिया को एक स्मॉल एरिया मानते हुए, स्मॉल एरिया एलिमेंट सपोज करते हुए, तो ये हमने डाइवर्जेंस ए ऑब्टेन किया था, अभी डिफाइन किया था, और ये डाइवर्जेंस ए का डिफिनीशन हो गया मैथमेटिकली. अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है. तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इन ए वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट्स द सोर्स स्ट्रेंथ ऑफ ए वेक्टर. किसी वेक्टर के सोर्स की स्ट्रेंथ को बतलाता है कि वह सोर्स कैसा बिहेव करेगा, वह सोर्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, मतलब सोर्स होगा या सिंक होगा.
अगर डाइवर्जेंस डिपेंड करेगा वेदर द डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये फिजिकल मीनिंग डाइवर्जेंस का है कि डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड में किसी वेक्टर के सोर्स स्ट्रेंथ को बतलाता है, उसको निर्धारित करता है कि आखिर वह सोर्स स्ट्रेंथ कैसा होगा, वह सोर्स के रूप में एक्ट करेगा या सिंक के रूप में एक्ट करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इफ डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव देन इट बिहेव्स एज ए then the source strength behaves as a डाइवर्जेंस के पॉजिटिव होने से सोर्स स्ट्रेंथ जो होगा वह बिहेव करेगा एज ए माने डाइवर्जेंस सोर्स स्ट्रेंथ अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वहाँ जो वॉल्यूम है वह एक्सपेंड कर रहा है। जो फ्लूइड है, अगर सपोज करते हैं कि फ्लूइड का फ्लो है, वेक्टर वह फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, सपोज करें कि ये वेक्टर फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ डाइवर्जेंस पॉजिटिव का मतलब है कि वहाँ सोर्स से जो सोर्स है, सोर्स फील्ड है, उससे फ्लूइड, उससे फ्लक्स मतलब फ्लूइड फ्लक्स प्रोड्यूस होकर के बाहर डाइवर्ज कर रहा है। ये पॉजिटिव का मतलब यही हुआ। तो उस सिचुएशन में डाइवर्जेंस जब पॉजिटिव होगा तो जो सोर्स फील्ड होगा वह सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और दूसरी सिचुएशन में जब डाइवर्जेंस निगेटिव होगा तो निगेटिव होने का मतलब है कि डाइवर्जेंस निगेटिव होने का मतलब है कि या तो वहाँ जो वॉल्यूम है फ्लूइड का वह डिक्रीज कर रहा है या वहाँ पर डेंसिटी लिक्विड का इंक्रीज कर रहा है। तो निगेटिव फ्लक्स का ये मीनिंग हुआ। और पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब हुआ कि वॉल्यूम फ्लक्स का फ्लो का, अगर मान लिया कि लिक्विड है तो लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव है, मतलब फ्लो वहाँ पर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और डेंसिटी घट रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ, फिजिकल मीनिंग ये डाइवर्जेंस का। तो अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो कि सोर्स स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। तो यहाँ से इसका मतलब डाइवर्जेंस पॉजिटिव का मतलब हो गया कि यहाँ से बाहर की ओर डाइवर्ज करेगा। मतलब ये सोर्स जो है, ये जो आपका पॉइंट P है वह सोर्स जैसा काम करेगा और यहाँ से जो फ्लक्स है वह बाहर निकलेगा। यह फ्लक्स बाहर निकलेगा, यहाँ से P पॉइंट से होकर के बाहर की ओर निकलेगा। ये बाहर की ओर निकल रहा है, देखें ये बाहर की ओर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सरफेस है, सरफेस के इंक्लोज के अंदर कोई पॉइंट P है। तो अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर पॉइंट P से कहने का मतलब ये जो पॉइंट P होगा वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से उत्पन्न होने जो फ्लक्स है वह बाहर की ओर डाइवर्ज करेगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो ये कब होगा? जब डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। इफ डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव, divergence is positive, if divergence is positive, then point P inside a closed surface, then in the vector field, then point P behaves as a source, that is behaves as a source. On the other hand, if flux is negative, then point P behaves as a sink. Sink means cold body, तो उसके जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा उस सिचुएशन में, जो फ्लक्स है वो अंदर की ओर जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर से अंदर की ओर आकर टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए उसके अंदर का जो पॉइंट P होगा उस वेक्टर फील्ड में वह
कैसा बिहेव करेगा, वह बिहेव करेगा सिंक जैसा। यहाँ इसको फिगर को मैं स्केच करता हूँ। देखिए इनक्लोजर है, एरिया, यस, इसके अंदर पॉइंट पी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि बाहर से आकर के इसमें टर्मिनेट हो जाएगा, जो फ्लक्स होगा बाहर से आकर के टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट पी, इसके अंदर का क्लोज सरफेसेस के अंदर का जो पॉइंट है वह सिंक जैसा बिहेव करेगा। और यहाँ पर क्या बिहेव करेगा, यहाँ पर पी जो है सोर्स जैसा बिहेव करेगा, सोर्स, और ये यहाँ पर पी सिंक जैसा बिहेव करेगा। ये यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स है आकर के टर्मिनेट हो जा रहा है अंदर, देखिए टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसलिए ये अंदर टर्मिनेट हो जा रहा है पी पॉइंट पर, तो इसलिए देयरफॉर इट बिहेव्स एज ए पी पॉइंट बिहेव्स एज ए सिंक, ये सिंक जैसा बिहेव करेगा, दैट इज कोल्ड बॉडी जैसा। और अगर किसी सरफेस से होकर के जितना फ्लक्स इंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स इज जीरो, तब उसमें डाइवर्जेंस जो होगा उस वेक्टर का जीरो हो जाएगा। सिचुएशन हो सकता है कि अगर जितना फ्लक्स अगर किसी सरफेस से होकर के उसके अंदर इंटर कर रहा है, इंक्लोजर के अंदर, और उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो उस सिचुएशन में फ्लक्स डाइवर्जेंस से जीरो और फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। देखिए जितना फ्लक्स यहाँ पर आकर के इस इंक्लोजर के अंदर यहाँ पर इंटर कर रहा है, देखिए फ्लक्स नंबर ऑफ, ये फ्लक्स इतना इंटर किया उतना ही दूसरे सरफेस से बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब है कि टोटल फ्लक्स जीरो हो गया, नेट फ्लक्स जीरो हो गया। तो इसलिए डाइवर्जेंस जो होगा, डाइवर्जेंस होगा इस सिचुएशन में किसी वेक्टर का, सपोज करते हैं ये वेक्टर वही फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स माने फ्लूइड का फ्लो भी फ्लक्स ही है। तो डाइवर्जेंस का फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी यूज है, इंपॉर्टेंस है। फ्लूइड मैकेनिक्स, मोशन ऑफ ए फ्लूइड का स्टडी में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, यूज है। ये देखिए इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, यहाँ इनकमिंग फ्लक्स है जो सरफेस से लेफ्ट साइड से इंटर कर रहा है, इनकमिंग फ्लक्स हो गया। और ये आउटगोइंग फ्लक्स, जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है। इसका मतलब है कि नेट फ्लक्स जीरो हो गया, तो डाइवर्जेंस जो है जीरो हो जाएगा। यहाँ डाइवर्जेंस आउटगोइंग फ्लक्स है, तो यहाँ इस सिचुएशन में डाइवर्जेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट पी बीच में, यहाँ पॉइंट पी है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस से, इस केस में डाइवर्जेंस से जो है जितना फ्लक्स आया उतना बाहर निकल गया, दैट इज डाइवर्जेंस ए वेक्टर सपोज करते हैं इक्वल टू जीरो। फ्लक्स जीरो, नेट फ्लक्स जीरो का मतलब है डाइवर्जेंस जीरो। तो फ्लक्स का मतलब डाइवर्जेंस, फ्लक्स का मतलब है डाइवर्जेंस का मतलब हो गया कि फ्लक्स डाइवर्ज करना, बाहर निकलना। तो इसका यूज है, एप्लीकेशन है हाइड्रोडायनेमिक्स में, डाइवर्जेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो ये फिजिकल मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस हो गया कि अगर फ्लक्स पॉजिटिव है, अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में कोई क्लोज सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर का जो पॉइंट होगा वह जो सरफेस के अंदर है, सरफेस उसे इंक्लोज किए हुए है, तो वह बिहेव करेगा, वह पॉइंट बिहेव करेगा, उसके अंदर का पॉइंट बिहेव करेगा सोर्स जैसा। इसलिए जो फ्लक्स होगा वह बाहर की ओर निकल जाएगा, वहाँ से ओरिजिनेट होकर के बाहर की ओर निकल जाएगा। और सेकेंड सिचुएशन में इफ़ डाइवर्जेंस इज निगेटिव, यहाँ हमने बनाया है फिगर 1, ये फिगर 2 है। इफ डाइवर्जेंस इज नेगेटिव देन पॉइंट पी बिहेव्स एज ए सिंक, दैट इज कोल्ड बॉडी। जो सभी फील्ड लाइन्स आकर के इसके अंदर टर्मिनेट हो जाएगा। सभी फील्ड लाइन्स बाहर से आकर के इस अंदर में क्लोज इनक्लोजर एस जो एरिया है उसके अंदर आकर के टर्मिनेट हो जाएगा। तो पी पॉइंट को जो है, इफ डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव, तो उस सिचुएशन में हम पॉइंट पी बिहेव्स एज ए सिंक, ये पॉइंट पी है बिहेव्स एज ए negative point P. If the divergence is negative, then point P behaves as a sink, that is cold body. Then point P behaves as a sink,
So it is clear that if divergence is positive then point P behaves as a source, और जो फ्लक्स होगा वह बाहर की ओर बाहर निकलेगा फ्लूइड। अगर फ्लक्स हो सकता है फ्लूइड है, वाटर है, गैस है, तो कहने का मतलब वाटर का फ्लो बाहर की ओर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा तो वह बाहर निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा, वह फ्लक्स के रूप में, माने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग इन एंड डाइवर्जिंग। तो कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड के किसी इनक्लोजर से होकर, किसी पॉइंट के अराउंड जो इनक्लोजर है स्मॉल एरिया उससे होकर के, तो वह मेजर हो जाएगा डाइवर्जेंस का। तो अगर फ्लक्स डाइवर्जेंस पॉजिटिव है इसका मतलब पॉइंट पी जो उस वेक्टर फील्ड में उस वेक्टर को इंक्लोज किए हुए है वेक्टर, तो सरफेस के द्वारा, एक एलिमेंटल सरफेस के द्वारा, तो पॉइंट पी बिहेव से जो सोर्स होगा। अगर डाइवर्जेंस सरफेस से निगेटिव है तो इसका मतलब हो गया कि पॉइंट पी बिहेव से जो सिंक। इसका मतलब है कि जो फ्लक्स होगा बाहर से आकर के अंदर में टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर इनकमिंग फ्लक्स किसी सरफेस से होकर के इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स के इक्वल हो जाए तो उस सिचुएशन में डाइवर्जेंस से का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। Now in last, curl of a vector. Curl means rotation. If we operate del vector, that is del operator on a vector, suppose a vector, by cross product, we obtain a vector which is called कर्ल ए वेक्टर। वही कर्ल होगा कि अगर किसी वेक्टर पर हम डेल ऑपरेटर को अप्लाई करें, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट द्वारा, तो उस सिचुएशन में एक वेक्टर ऑब्टेन होगा जिसको कर्ल ए वेक्टर कहा जाएगा। तो कर्ल मींस रोटेशन होता है, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर। इफ वी operate del operator, that is del vector, del operator operate the cross product of डेल ऑपरेटर, डेल वेक्टर, इसे डेल ऑपरेटर पढ़ा जाता है, टू ए वेक्टर, सपोज ए वेक्टर, वी ऑब्टेन ए वेक्टर विच इज कॉल्ड कर्ल ए वेक्टर। कर्ल ए, वी ऑब्टेन ए वेक्टर, वेक्टर ही हम ऑब्टेन करते हैं जिसे कर्ल ए कहा जाता है, वेक्टर विच इज कॉल्ड कर्ल ए, कर्ल ए वेक्टर, कर्ल ए वेक्टर। और इसको सिंबल में ब्रैकेट में लिखा जा सकता है डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कर्ल ए वेक्टर को लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर, और इसको कार्टेशियन कंपोनेंट के रूप में इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। कर्ल ए, वेयर ए वेक्टर इज ए वेक्टर विच इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट having coordinates x, y, z at any point in a space, in the space. So curl a vector, we can write it as del vector cross a vector is equal to I del upon del x plus j cap, I cap del upon del x, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, एंड ए वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप
ए वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में इस ढंग से एक्सप्रेस किया जा सकता है एक्स वाई जेड कंपोनेंट के टर्म में। ए वेक्टर इन प्लेस ऑफ ए वेक्टर वी कैन राइट एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप, और इसको इस पर अप्लाई किया है क्रॉस प्रोडक्ट, इस एक वेक्टर को कंपोनेंट के रूप में फॉर्म में लिख करके इस पर अप्लाई किया गया क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके पहले डेल ऑपरेटर उस पर अप्लाई किया गया, जो जिसका वैल्यू डेल ऑपरेटर का आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल पाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसका वैल्यू लिखा जा सकता है। इसका इसे एक डेल कर्ल ए को डेल क्रॉस ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, आई कैप फर्स्ट कॉलम में, जे कैप, उसके बाद के कैप, आई का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स है, वाई जे का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल वाई है, के का जेड डेल अपॉन डेल जेड का के का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल जेड है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और फिर अब सेकेंड रो में, यहाँ पर थर्ड रो में आई जे के फर्स्ट रो में है, दूसरा डेल वाई डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड सेकेंड रो में है, और ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है एक्स ए वाई ए जेड, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो गया। इसको कर्ल ए का वैल्यू कर्ल ए डेट इज डेल क्रॉस ए, और इसे सॉल्व भी किया जा सकता है, और इसे लिखा जा सकता है फिर से आई कैप जब सपोज करेंगे आई कैप, तो इसके सामने का कॉलम और सामने का जो रो होगा उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। तो डेल आई जब कैप कंसीडर किए तो आई सामने का कॉलम सामने का रो को उसको छोड़ दिया जाता है, ये आई के सामने का कॉलम और सामने का रो को छोड़ दिया जाता है, तो बचा डेल अपॉन डेल वाई इंटू ए जेड, लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन बीच में माइनस साइन दे करके देन राइट टू लेफ्ट, तो वी कैन राइट आई कैप, तो बचा डेल अपॉन, ये चार टर्म बचा, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई डेल जेड में मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई से अपॉन डेल जेड, और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव होता है, सेकेंड नेगेटिव, फर्स्ट थर्ड कॉलम पॉजिटिव, माइनस जे कैप। अब जे कैप सपोज करेंगे तो ये सामने का कॉलम सामने का रो इसको छोड़ना होगा, तो डिटर्मिनेंट के रूल से अब डेल वाई डेल एक्स, और ये बचा ए जेड, डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस, अब फिर राइट टू लेफ्ट बीच में माइनस देकर राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे, डेल बाई डेल जेड इंटू ए एक्स दैट इज डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के कैप। अब के कैप सबसे लास्ट वाला यूनिट वेक्टर, के कैप के सामने का कॉलम और सामने का जो रो है इसको छोड़ देना होगा। अब बची है चार टर्म, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई ए एक्स ए वाई, अब लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो के कैप यहाँ हो गया डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। तो देख रहा है इसमें कंपोनेंट मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, आई जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर्स है। तो इस प्रकार जो कर्ल होगा किसी वेक्टर का कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर इटसेल्फ, देयरफॉर कर्ल ए इक्वल टू, इसे पढ़ते हैं नेबुला क्रॉस ए वेक्टर या डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर, और इसका वैल्यू ये ऑब्टेन हुआ है यहाँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, कर्ल ए का वैल्यू, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी ये कर्ल इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसको मैंने किया और बाद में इसको सॉल्व कर दिया यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ इन लास्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। Now physical significance, that is physical importance or physical meaning of curl. Similar to the physical meanings of gradient and divergence, there is physical meaning of curl also, and curl of a vector is defined as the curl of a vector at a point in a vector field is defined as the maximum line integral of that vector. That is, suppose a vector, I have taken a vector for example,
तो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर पर यूनिट infinitesimal surface area. Infinitesimal surface area means very small area. Maximum line integral per unit area along the boundary of an infinitesimal test area at that point, जिस पॉइंट पर हम कर्ल को डिफाइन कर रहे हैं वेक्टर फील्ड के किसी पॉइंट पर, और जिसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट टेस्ट एरिया. If a vector be any vector at a point inside the vector field and delta S is the infinitesimal test area, very small test area, then we can define curl as mathematically as curl A is equal to limit delta S tends to 0. यहाँ लिमिटिंग वैल्यू है, एरिया स्मॉल एरिया, डेल्टा एस इज वेरी इन्फाइनाइटली स्मॉल एरिया, डेल्टा एस टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0, और यहाँ लाइन इंटीग्रल हो गया पूरे क्लोज सरफेस पर वेक्टर फील्ड में. तो जिसके सराउंडिंग मतलब जिस पॉइंट पर ए वेक्टर है, वेक्टर फील्ड के जिस पॉइंट पर ए वेक्टर और उसको इंक्लोज करने वाला जो इंटायर सरफेस एरिया है, तो इंटीग्रल ओवर द इंटायर क्लोज सरफेस ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. लाइन इंटीग्रल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एलोंग ए कर्व? तो कोई वेक्टर ए होता है किसी पॉइंट पर और वहाँ पर छोटा सा एलिमेंट डी आर ले लेती है, उस कर्व का छोटा सा स्मॉल एलिमेंट डी आर ले लिया जाता है. तो इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व या क्लोज पाथ ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर स्मॉल लेंथ है उसका, उस कर्व का, उस क्लोज पाथ का. तो ए वेक्टर इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज द लाइन. ये लाइन इंटीग्रल हो गया ए वेक्टर का उस पॉइंट के अराउंड, मैंने उस पॉइंट के अराउंड जो क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस पर. और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया लाइन इंटीग्रल का, ये मैक्सिमम वैल्यू है. तो यहाँ पर ब्रैकेट दे करके मैक्स लिखा है. और पर यूनिट एरिया है, तो पर यूनिट एरिया जो इन्फाइनाइटसिमल स्मॉल एरिया जो स्मॉल डेल्टा एस है उसे डिवाइड कर देंगे, तब पर यूनिट एरिया हो गया. ये मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप क्लोज सरफेस ए वेक्टर डॉट डी आर मैक्स, दैट इज मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल हो गया ए वेक्टर का. तो वहाँ पर मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पर यूनिट एरिया हो गया, डेल्टा एस से डिवाइड कर दिए. और किसके अलॉन्ग होगा? एलोंग द बाउंड्री सरफेस ऑफ एलोंग द बाउंड्री ऑफ एन इन्फाइनाइटसिमल टेस्ट एरिया एट दैट पॉइंट. तो उस इन्फाइनाइटसिमल जो टेस्ट एरिया है डी एस डेल्टा एस, उसके बाउंड्री के अलॉन्ग जो है मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल होना चाहिए, दैट इज एलोंग द क्लोज पाथ होना चाहिए. लाइन इंटीग्रल एलोंग द क्लोज पाथ सराउंडिंग दैट पॉइंट पी इनसाइड द वेक्टर फील्ड. तो यही आपका ये हो गया, कर्ल ए का डिफिनीशन हो गया, और यही फिजिकल मीनिंग है कर्ल ए का, दैट इज कर्ल इज ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ क्लोज लूप ए वेक्टर डॉट डी आर, ए वेक्टर डॉट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट साइन डी आर वेक्टर मैक्सिमम वैल्यू, और पर यूनिट एरिया है तो डेल्टा एस से उसे इन्फाइनाइटली स्मॉल एरिया से डिवाइड कर दिए, तो पर यूनिट एरिया हो गया लाइन इंटीग्रल, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया. और इसका डायरेक्शन जो होगा, उसका कर्ल का जो डायरेक्शन होगा, उसका जो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब कर्ल का जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप के लॉन्ग होगा. एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द टेस्ट एरिया, इन्फाइनाइटली स्मॉल टेस्ट एरिया के परपेंडिकुलर ये होगा. एन कैप इज द यूनिट वेक्टर. तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर एलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द टेस्ट एरिया, और टेस्ट एरिया हमने सपोज किया है डेल्टा एस विच इज इन्फाइनाइटली स्मॉल, वेरी स्मॉल, दैट मीन्स. तो इसी के साथ ये पार्ट जो लेक्चर 2 है बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के लिए, जो ऑनर्स सब्सिडियरी और पास सिलेबस तीनों को कवर करेगा. तो स्पेशली ऑनर्स के लिए, लेकिन पास सिलेबस को भी और सब्सिडियरी को भी कवर करेगा. और इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये जो क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये एक्सप्लेन डाइवर्जेंस कर्ल, ग्रेडियंट कर्ल, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड गिव देयर फिजिकल मीनिंग. तो इस ढंग से क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटीज, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल इंडिया में, सभी में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये
टॉपिक है और इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली पूछा जाता है, तीनों को डिफाइन करके फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ। तो इसी के साथ ही पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।